સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઇક્વિટી માર્કેટને સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે, એટલા માટે જ ચેમ્બર દ્વારા વખતો વખત સારા એવા વક્તાઓને બોલાવીને સેમિનારો કરવામાં આવે છે. આજનો સેમિનાર આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે, એટલે ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબને હું વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે વિનંતી કરું છું. Good evening, ladies and gentlemen. Today we have gathered here for the session of Market Outlook to know about Market Observatory. In this regard, I would like to welcome dignitaries on the dais and off the dais. I would definitely like to welcome our today's eminent speaker, Mr. Ajay Tyagi, Head of Equity, UTI. Let's first of all welcome him with a round of applause, please. So welcome, Mr. I would also like to welcome our office bearers, Honorary Secretary Bhavesh Taylor, Honorary Treasurer Bhavesh Gadia, Group Chairman Sri Pareshbhai Lathia, Sri Ketanbhai Dalal, Advisor, Capital Market Committee, Ayub Yaqub Ali, Chairman, Capital Market Committee, and all the dignitaries on the dais and off the dais and invited guests. I welcome you all again. Friends, as you all know, Market Outlook is referring to a forecast regarding the future trends of a particular company, economic segment, commodity or stock market exchange. Market Outlook are based upon past performance, prevailing economic factors, consumer demand and opinion. It is also called market forecast. Normally you would also look at market value, not just market size. For example, although the high-end home segment is 2.5 times larger than the small business segment as measured by number of customers, the small business customer spends almost 4 times as much as the home office customer. Therefore, the small business market is more important market in terms of dollar value. A market forecast should always be subject to reality check. When you think you have a forecast, you need to find a way to check it for reality. In this case, if the total market is worth some estimate, you could estimate sales of all the competitors and see if the two numbers relate to each other. Like if we talk about August 2022 market outlook, during the month of July 22, the investor sentiment improved on account of weather. Corporate earnings announcement hitting of a slow rate hike tragically by US FD, as it weighed concern on potential recession over high inflation and lower FPI. Outflow in secondary market of Indian equities, we believe inflation may be closer to peaking out globally given the cool off in most of the commodity prices including oil prices. So I think our learned speaker will brief more on the subject. So once again, I welcome you all for this excellent program and I wish for grand success for this program. Thank you very much. થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ સર. હવે ચેમ્બરની પરંપરા મુજબ આપણે એમનું ફેસિલિટેશન કરવા માટે ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ અને ઓફિસ બેરરને હું વિનંતી કરું છું કે અજયભાઈ ત્યાગી સાહેબનું આપણે ફેસિલિટેશન કરીએ. આજના જે આપણા અજયભાઈ ત્યાગી યુટીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફથી આવેલા છે, એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા માટે અમારા કમિટીના એડવાઇઝર કેતનભાઈ દલાલને હું વિનંતી કરું છું. Respected President Mr. Godawala, Honorary Treasurer Mr. Bhavesh Gadia, today's learned speaker Mr. Ajay Tyagi, Head of Equity at UTI Asset Management,
Group Chairman, Mr. Paresh Bhai Lakhia, Chairman of the Capital Market Committee, Mr. Ayub Bhai Yakubul, and my dear friends. It gives me immense pleasure introducing an ace fund manager, a strong believer in power of long-term investment and always in a hunt of high-quality businesses with strong balance sheets is none other than Mr. Ajay Tyagi. What makes Mr. Tyagi all the more remarkable is the fact that he has been successful in identifying many multi-baggers, which has grown at much higher paces than our India's GDP and has high return on equity and return on capital investment. To name a few, he bought Bajaj Finance in 2016. Many investors saw it as an expensive stock as it was trading at price to book value of 4 times. However, seeing the growth potential of the company, Mr. Tyagi bought the stock and today it has grown many folds. Similarly, back in 2011, Mr. Tyagi bought InfoEdge at around $500. The first listed internet company, and stock today is around 10 times. Like this, his portfolio have benefited from his ability to spot good ideas, whereas others are staying away because of high valuation or avoiding newly listed companies. Academically, he is CFA and chartered holder and has master degree in finance from Delhi University. In 2000, he joined UTI as an analyst through campus recruitment. This way, he has a long stint at UTI Asset Management Company. He has won many awards and accolades for his performance, both domestically and globally. Friends, as Ayub Bhai said, understanding market behavior is a bit difficult. You have to understand the micros and micros fundamental of the market. You cannot judge it only by prices. It is said that equity market prices behavior is very similar to a drunk man. Sometimes it goes left, sometimes it goes right. And at the end of the lane, if he goes right, don't think that his house is nearby. All possibility that he may catch a rickshaw and go in some other direction. So friends, we are lucky today to have Mr. Tyagi with us for getting a better understanding of the market. And let me assure you that it will be a very interesting session, very fruitful session for all of us who are present here. With this, I conclude and request our chairman to take it from here. Thank you very much. આજનો જે ટોપિક છે માર્કેટ આઉટલુક, એના ઉપર હું 2 શબ્દ કહી આપના સ્પીકરને હેન્ડ ઓવર કરીશ. Dignitaries on the dais, of the dais, ઇક્વિટી આઉટલુક આ સબ્જેક્ટ ને બહુ સારા ટાઈમ પર આપણે આજે એક સેમિનાર કરી રહ્યા છે. પ્રેસિડેન્ટ સાહેબનો આગ્રહ હતો કે ભાઈ તમે મહિનાના 2-3 ઇક્વિટી માર્કેટ પર સેમિનારો કરો, તો અમારું તો આખી કમિટીનું પ્રોમિસ હતું કે અમે કરશું. ને થેન્કફુલી આજે અજયભાઈ ત્યાગી આટલે આવી ગયા છે, એટલે એક સેમિનાર સારો આપણે એમની પાસેથી મતલબ એમનું જે જ્ઞાન છે આટલા વર્ષોનું એ લેશું. એટલે હું ઇક્વિટી આઉટલુક પર 2 શબ્દ કહી એમને હેન્ડ ઓવર કરું છું. વૈશ્વિક ઇક્વિટી માર્કેટમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. યુએસ, જાપાન, યુરોપિયન અને બ્રાઝિલના માર્કેટો અને દેશોમાં સારા સુધારાઓ જોવા મળ્યા છે. ચીનમાં થોડું નેગેટિવ જોવા મળ્યું છે. જ્યારે જુલાઈ ને ઓગસ્ટ મહિનામાં ભારતના જે ગ્રોથ છે એમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. માર્કેટમાં એફઆઈઆઈના ફિગરો સારા આવવા માંડ્યા છે. સતત 10 મહિનાના વેચાણ બાદ એફઆઈઆઈનું બાઇંગ થોડું જોવા મળ્યું છે. જીએસટી અને ઇન્કમ ટેક્સના કલેક્શનના ફિગરો પણ સારા આવી રહ્યા છે. 2020થી જે 2020 પહેલા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટો માર્કેટના અંદર લગભગ 2 કરોડના આજુબાજુ હતા.
બે કરોડના આજુબાજુ હતા તે આજે લગભગ 10 કરોડને ક્રોસ કરી ગયા છે. વર્લ્ડ માર્કેટમાં એટલે આખા વર્લ્ડમાં નેગેટિવ ન્યૂઝ હોવા છતાં રશિયા, યુક્રેન, ચાઇના, તાઇવાન, યુએસનો ફેડના ઇન્ટરેસ્ટ રેટનો વધારો, એ બધા નેગેટિવ ન્યૂઝ સતત વધારો થઈ રહ્યો હોવા છતાં ભારતીય માર્કેટોમાં સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે. એ આપણા માટે એક બહુ સારા સમાચાર છે. ને યસ્ટરડે જીડીપીનો ગ્રોથ જે લાસ્ટ મંથનો આવ્યો એ પણ બહુ સારો ફિગર આવ્યો હતો. એનાથી લાગે છે કે આપણા માર્કેટો આગળ મતલબ સારું રિટર્ન આપશે. ને એનો એક પરિબળ એ પણ છે કે એફઆઈઆઈએ જે કન્ટિન્યુઅસ સેલિંગ કર્યું એ કન્ટિન્યુઅસ સેલિંગના અંદર આપણે જોઈએ તો વૈશ્વિક બજારોની સામે આપણા બજારોના ને નેગેટિવ જે ઇફેક્ટ હતી તે ઓછી જોવા મળી. એનું રીઝન એક જ હતું કે ભાઈ કોરોના કાળના અંદર જે લોકો પાસે ફંડ હતું તે લોકોએ ઇક્વિટી માર્કેટમાં સારું રોકાણ કર્યું ને એનો ફ્લો તમે જુઓ તો એવરી મંથ લગભગ 12,000 કરોડથી વધારે સતત રહ્યો છે. એના કારણે ઇક્વિટી માર્કેટ ઘણું સારું રિટર્ન આપ્યું ને લોકોનો પેલું શું છે ફ્રેન્ડ સર્કલ, ફેમિલી ફ્રેન્ડ બધા વાત કરતા હોય કે ભાઈ આટલું ઇન્વેસ્ટ કરેલું આટલું પ્રોફિટ થયું. એ ઘણા લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ વધતું ગયું ને આજે 10,000 કરોડના ઉપર ડિમેટ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ થઈ ગયા છે. ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પણ તમે ફોલિયો નંબર્સ જુઓ તો ઘણા સારા થઈ ગયા છે. એના કારણે આપણું જે ઇન્ડિયન માર્કેટ છે એ આપણે એમ કહીએ કે ખરા અર્થમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે. તમે લગભગ 2 ડેઝ પહેલા જોયું હશે કે ડાઉ જોન્સ 1100 પોઈન્ટ માઇનસ હતું. તેમ છતાં પણ આપણું માર્કેટને એની નેક્સ્ટ ડે કંઈ એવી ઇફેક્ટ જોવા નહીં મળી. એ બહુ સારા પોઝિટિવ સારા સમાચારો છે આપણા ઇન્ડિયન માર્કેટ માટે. પણ એ સસ્ટેન રહેશે કે નહીં ને આ બધા જે બાહ્ય મતલબ વૈશ્વિક જે નેગેટિવ ન્યૂઝો છે એનાથી આપણે શું સાવચેત રહેવું જોઈએ ને એને આપણે શું પ્રિકોશન રાખી શકાય એ આપણે મતલબ આજે સર પાસેથી જાણીશું. તમે બીજું જુઓ તો ફોરેન વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો એફપીઆઈ સતત વેચાણ કરવા પછી જે ઇક્વિટીમાં બાઇંગ કરી રહ્યા છે ને તે પછી એફપીઆઈ વેચાણ ઉભરતા બજારોમાં કરતી હતી તે વ્યાપક આધારી હતી. સાથે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન પ્રમાણ તરીકે બજારોમાંથી આઉટફ્લો સૌથી 14 વર્ષમાં સૌથી ખરાબ રહ્યો હતો. પરંતુ પાછું ઇન્ડિયન માર્કેટ આપણું સારું સસ્ટેન કરી રહ્યું છે. ભારે વેચવાલીની લહેર પછી બજારોમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો એક સારી વાત છે. વેપાર ભારતીય ડોલરના મૂલ્ય સહિત જોખમની કેટલીક આંતરિક સ્તરે પહોંચી ગયું છે, જે દર્શાવે છે કે બજારો સારા રહેશે ને મોટી ફાર્મા કંપનીઓ જે યુએસ કિંમત નિયંત્રણ કરતી હોય છે અને આઈટી માર્જિનથી ચૂકી જાય છે તે પણ આજે સબસ્ટેન્ડ કરી રહી છે. અમને લાગે છે કે ઈપીએસ કટ છે, બજાર સારા પરિબળ છે, એ સારા પરિબળ છે બજાર માટે. એફપીઆઈ ભારે વેચવાલી હોવા છતાં ભારતીય માર્કેટ નોંધપાત્ર રીતે સ્થિતિ સુધરી રહી છે, જે વૈશ્વિક ઇક્વિટી કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. છેલ્લા 12 મહિનામાં મજબૂત સ્થાનિક પ્રવાહ અને સ્થિર આવકના અંદાજને કારણે બજાર મજબૂત બન્યું છે. ચેમ્બર દ્વારા આજનો સેમિનાર જે યોજવામાં આવો તે ટોપિક ઘણો સારો છે અને ઘણા સારા સમયે યોજવામાં આવ્યો છે. માર્કેટમાં બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે નહીં તે આજના આપણા વક્તા અજયભાઈ ત્યાગી આપને જણાવશે સારી રીતથી, એવી આશા રાખીએ છીએ. ને હું એમને મારું એ પૂરું કરીને અજયભાઈને એમનો સેમિનાર ચાલુ કરવા માટે વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ. Good evening, everyone.
सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा पूरे सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स का कि यूटीआई को ये अवसर दिया आपके समक्ष रहने का। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे यूटीआई के जितने कोलीग्स हैं, खास करके चंदन जो सूरत में ही बेस्ड है, टीके सिंह जो अहमदाबाद में बेस्ड हैं और गुजरात रीजन के हेड हैं, और साथ ही साथ भरत घिया जो पूरे वेस्टर्न रीजन के हेड हैं। इन्हीं की वजह से ये मीटिंग आज पॉसिबल हो पाई और इसी वजह से हम आज साथ में इस सभा में हैं। जैसा कि मैं समझा, मेरी गुजराती तो बहुत अच्छी नहीं है, पर जैसा कि मैं समझा पिछले 10 मिनट में कि आज की जो ये सभा है वो मार्केट आउटलुक को लेके है और कुछ एक जो प्रश्न आपके जहन में है उसको लेके है। अब जो मैं कहने जाऊंगा अगले आधे घंटे से 45 मिनट में, मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, क्योंकि आप सुनने आए हैं कि बाजार अगले 6 महीने कहां जाएंगे, 12 महीने कहां जाएंगे, और मेरा जवाब ये रहने वाला है कि मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है कि अगले 6 महीने में बाजार कहां जाएंगे। और मेरा साथ ही साथ ये भी मानना है कि किसी को भी नहीं पता कि बाजार अगले 6 महीने से 12 महीने कहां जाएंगे। कुछ लोग शायद सच बोल देते हैं और कुछ लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमें इतना पता है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हम दावे से कहते हैं अगले 12 महीने में ये होने वाला है। लेकिन सच के साथ साथ एक अच्छी बात यह भी है कि आप में से किसी को बाजारों से वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये मालूम करने की जरूरत है ही नहीं कि अगले 6 महीने में बाजारों का रुख क्या रहने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि बाजार किस दिशा में जाएंगे, युद्ध चाइना और ताइवान के बीच में छिड़ेगा या नहीं छिड़ेगा, और उस युद्ध के चलते रुपया गिरेगा या मजबूत रहेगा, कच्चे तेल की कीमत ऊपर जाएंगी या स्थिर रहेंगी, मैं कहता हूं इन सब चीजों का आपको आकलन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई ट्रेडर हो जिसको अगले 3, 6, 9 महीने के बारे में सोचना है तो हां जरूर उसको ऐसा मालूम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप वाकई में एक निवेशक हैं, और देखिए एक अच्छा खासा फर्क है एक स्पेकुलेटर या ट्रेडर में और एक इन्वेस्टर में। मैं कहता हूं जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और अगर आप सही मायने में अपने आप को एक निवेशक या इन्वेस्टर समझते हैं तो मेरा यह दृढ़ मानना है, और यूटीआई इस व्यवसाय में 60 साल से है, मैं खुद यूटीआई में 22 साल से जुड़ा हुआ हूं, मेरे साथ में मेरे कुछ सहयोगी हैं जो मेरे से भी ज्यादा तजुर्बेकार हैं, 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। हम सबका यह मानना है कि बाजार का रुख, इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन, कच्चे तेल की कीमत, इन्फ्लेशन, रुपए की कीमत, ये सब किसी भी चीज के बारे में आपको आकलन, अटखेलियां, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में मालूमात करने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज आपको मालूम करनी है, जिस बिजनेस में आप निवेश करने जा रहे हैं अगले 5 साल में वो बिजनेस, वो व्यवसाय क्या करने वाला है। हम सबको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि हमारी मार्केट के बारे में नॉलेज किसी एक मार्केट पार्टिसिपेंट के जरिए मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, इनसाइडर न्यूज लेना, या ये पता करना कि अगले 1 साल में क्या होने वाला है, इससे हम वेल्थ क्रिएट नहीं करते। हम वेल्थ क्रिएट करते हैं सबसे पहले कोई एक बहुत मजबूत कंपनी और व्यवसाय ढूंढ के। वो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने रहती है, और उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती है कि उस व्यवसाय में किस तरीके से उसको पकड़ के रखना है। क्योंकि बहुत, मैं कह सकता हूं कि ज्यादा करके निवेशकों का व्यवहार रहता है कि कहीं ना कहीं बाजारों में जो चल रहा है उसके ऊपर वो नजर बनाने और नजर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया कि मैंने सुना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गाड़ियों की बिक्री कम होगी, और अगर गाड़ियों की बिक्री कम होगी तो वो मारुति के लिए अच्छा नहीं है, आइशर मोटर के लिए अच्छा नहीं है, आप बेच के निकल जाते हैं। किसी ने कहा कि युद्ध के चलते कमोडिटीज के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव प्रेशर आएगा,
कमोडिटी प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आप सोचते हैं कि चलिए तो स्टील और एल्यूमिनियम में अगले 6 महीने के लिए निवेश कर देते हैं. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल ऑफ दिस इज स्पेक्युलेटिव, ऑल ऑफ दिस इज हैविंग अ ट्रेडिंग मेंटालिटी. इससे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे. हमको सबसे पहले समझना है कि ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का इजाद कैसे हुआ, कहां से शुरू हुई है. आप में से कोई इस बारे में कुछ बोलना चाहता है? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग किस तरह से शुरू हुई? सर, आज से 400-500 साल पहले हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर से बड़ी एम्पायर थी, वहां पे कॉमन स्टॉक इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज लोगों ने नोटिस करी कि देखिए किसी के पास बहुत बढ़िया एक आइडिया है बिजनेस को, कोई बिजनेस आइडिया है किसी कंपनी को खड़ा करने का और उसको आगे बढ़ाने का, लेकिन उसके पास पूंजी निवेश करने के लिए नहीं है. हम में से किसी के पास भी एक ऐसा आइडिया आ सकता है कि देखिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विस हम ग्राहकों को देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो बिजनेस खड़ा करने के लिए पूंजी नहीं है. तो उस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कॉमन स्टॉक इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि उससे पहले आइदर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती थी या फिर पार्टनरशिप फर्म होती थी. या तो एक अकेला आदमी उस व्यवसाय को बढ़ा रहा था या फिर 2 आदमी मिलकर बढ़ा रहे थे. कॉमन स्टॉक इन्वेस्टिंग के जरिए एक इस तरह की कंपनी का इजाद किया गया जिसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं, कि भाई एक आदमी नहीं 20, 30, 40 या 50 आदमी मिलकर उस व्यवसाय के अंदर निवेश करेंगे, सबकी भागीदारी होगी. अगर रिटर्न मिले तो भी वो उसके हिस्सेदार होंगे, अगर रिटर्न नहीं बने और कंपनी जो है अच्छा नहीं कर पाई तो लॉस के भागीदार भी वो सब होंगे. लेकिन जिसके पास आइडिया है वो उसको आगे चलाएगा. दैट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड मोस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, और उसके जरिए मैं और आप उसमें निवेश कर सकते हैं. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप और मैं, जैसा कि आपने केतन भाई ने बताया बजाज फाइनेंस के बारे में, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इस कमरे में बैठ के बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी लॉन्च कर सकता है और उसको चला सकता है. बजाज फाइनेंस अपने आप में ही बहुत अद्भुत कंपनी है, लेकिन क्योंकि वो बाजारों में लिस्टेड है, आप और मैं उसके हिस्सेदार जरूर बन सकते हैं. भले ही हम उसमें 1 लाख रुपया डालें या 1 करोड़ रुपया डालें, 1 लाख डालेंगे तो शायद हम उसके 0.1% के भागीदार बनेंगे. 1 करोड़ डालेंगे तो हो सकता है हम उसके 1% के भागीदार बनेंगे. लेकिन उसी प्रपोर्शन में हमारी वेल्थ भी उस कंपनी के सक्सेस की तरह ऊपर बढ़ती रहेगी. अब अगर उसके ऊपर आप बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज ले आए कि बजाज फाइनेंस अच्छा है लेकिन मैंने सुना है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं इसलिए मैं बेच के निकल जाता हूं, या फिर मैंने सुना है कि विदेशी निवेशक, जैसा कि अयूब भाई ने बोला, विदेशी निवेशक हिंदुस्तान से बाहर निकल रहे हैं, बजाज फाइनेंस विदेशी निवेशकों का एक बहुत प्रिय स्टॉक रहा है इसलिए मैं उसको बेच के निकल जाता हूं, तो आप अपने आप ही बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें ला रहे हैं अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में. बजाज फाइनेंस, बजाज फैमिली जिसने बजाज फाइनेंस शुरू किया, मैं नहीं समझता वो इस तरह से सोचता होगा कि देखिए विदेशी निवेशक चले गए तो हमें बजाज फाइनेंस बंद करना चाहिए. अगर वो नहीं सोचते तो आप क्यों इस तरह सोच रहे हैं? एज अ शेयर होल्डर आप बजाज फाइनेंस में हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं. आपको बजाज फाइनेंस अगले 5 साल और 10 साल में इस देश के अंदर जितनी क्रेडिट ग्रोथ होने वाली है उसके अंदर आपको एक हिस्सेदार बनना है. अगले 3-6 महीने में इंटरेस्ट रेट का रुख क्या रहेगा, बाहरी निवेशक हिंदुस्तान में पैसा लाएंगे, ले जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेगा आरबीआई, उसके चलते क्या बजाज फाइनेंस की मार्जिन पे अगले 3 या 6 महीने में प्रेशर पड़ेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए. अगर आपने कोई व्यवसाय अपने आप शुरू किया है, और जाहिर बात है आप सब आज इस कमरे में इसलिए हैं क्योंकि आप अपने आप में कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, क्या आप अपने व्यवसाय के बारे में 3 या 6 महीने के हिसाब से सोचते हैं या 3 या 5 साल के हिसाब से सोचते हैं? अगर आपका उत्तर है कि देखिए मैं अपने व्यवसाय के बारे में कम से कम 5 साल का नजरिया लेके चलता हूं, तो जब आप बजाज फाइनेंस के अंदर एक निवेशक बनते हैं तो फिर आप उसके बारे में 3 महीने के लिए क्यों सोचते हैं? तो सबसे पहले
ये जो मार्केट आउटलुक सेशन है हमें ये बंद करना पड़ेगा। मार्केट आउटलुक की जगह हमें सेशन रखना पड़ेगा कि कैसे कंपनीज का चुनाव किया जाए, कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें हमें अपनी कमाई हुई मेहनत की पूंजी का निवेश किया जाए, और कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर चुनिंदा से चुनिंदा बेहतरीन से बेहतरीन कंपनीज के अंदर निवेश करके लाभ उठाया जाए और वेल्थ क्रिएशन की नींव रखी जाए। तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत लोग शायद डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है हम में से कोई भी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और मैं कहता हूं करने की जरूरत भी नहीं है। मार्केट प्रेडिक्ट करना मतलब अपना कीमती समय व्यतीत करने जैसा है। उस समय को आप लगाइए रिसर्च करने में कि भाई कौन सी ऐसी 10 कंपनीज हैं जिसमें हमें निवेश करना चाहिए। यूटीआई में हमारा केवल यही प्रयास रहता है कि देखिए कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें हम निवेश करें और उस निवेश के चलते अपने निवेशकों के लिए, अपने स्कीम्स के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन रिटर्न प्रदान कर सके। अब देखिए चलते हैं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। मैं मार्केट आउटलुक के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ एक जो भ्रम है आपके दिमाग में, मैं उन भ्रमों को दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में ऊपर जा रहे हैं, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहता। इस बात से तो मैं बिल्कुल नहीं झुठला सकता, लेकिन मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि 2003 से 8 के बीच में जब हमारी बाजार, कई लोगों को याद होगा, इधर 5 गुना बढ़े थे, 3,500-4 हजार से 21,000 तक गए थे। उस टाइम पे भी इंटरेस्ट रेट्स 5% से 8% की तरफ गए थे, लेकिन इसके बावजूद मार्केट्स ऊपर गई थी। अगर आप सोचेंगे इन्फ्लेशन रेट उस टाइम पे बहुत बढ़िया था, कंट्रोल में था, इसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, और अर्थव्यवस्था अच्छी होने के चलते बाजार ऊपर गए थे, तो मैं ये भी याद दिला दूं कि इन्फ्लेशन 4% से उस दौरान 6.5% गया। तो ये समझना कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो बाजार नीचे आएंगे, ये एकदम गलत धारणा है। ना केवल हिंदुस्तान में, पर अगर आप अमेरिकी बाजारों की भी बात करें तो वहां पे भी पिछले 50 सालों में यही अनुभव रहा है। सन 71 से लेके 2018 तक ये उन सब इंटरेस्ट रेट्स हाइक की सूची है, और उसके साथ साथ बाजारों ने किस तरह से रिएक्ट किया उसकी सूची है। सन 71 से लेके 74 के बीच में इंटरेस्ट रेट्स 4.25% से लेके 13% गए। ये अपने आप में मैं समझता हूं एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है। इतनी तो कोई भी इस वक्त कल्पना नहीं कर रहा। इस वक्त कल्पना ये की जा रही है कि 0 से करीबन 3 नहीं तो 3.25% तक यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। सही, या किसी को कुछ शक है? और आप ये समझिए कि ये 4.25 से लेके 13% तक गए, लेकिन उसके बावजूद इन 4 सालों में या 3 सालों में बाजार केवल 7% नीचे गई। ये एक इकलौता ऐसा एक समय रहा, एक टाइम पीरियड रहा जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और बाजार नीचे गिरे। उसके बाद जब जब यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, बाजार भी उस दौरान ऊपर गए हैं। 76 से 81, 76 से 81 के दौरान इंटरेस्ट रेट 5.5% से लेके 20% गए। मुझे नहीं लगता किसी ने इस बात की कल्पना करी होगी कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा स्तर से बढ़ेंगे। उसके बावजूद करीबन 70% इन 5 सालों में बाजारों के अंदर बढ़त हुई। अगर हम 2004 से 6 की बात करें, ये वो पीरियड था जो मैंने पिछली आपको स्लाइड में दिखाया था, जब बाजार बहुत ऊपर चले थे। हिंदुस्तान के बाजार 4,000 से लेके 21,000 तक गए थे। उस दौरान पे भी फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे 1.25% से 5.25%। उनकी बाजारें 18% ऊपर गई और हिंदुस्तान की बाजारें तो दुगने से भी ज्यादा ऊपर गई। और अगर हम लास्ट फेड रेट हाइक साइकिल की बात करें, क्योंकि जो मौजूदा फेड रेट हाइक साइकिल है वो तो अभी भी चल रही है, शायद 2023 में जाके खत्म होगी या 2022 के आखिर में जाके खत्म होगी। 2015 से 18 0 से 2.5%, जो फिलहाल हम
देख रहे हैं 0 से 3-3.25% की तरफ फेड इंटरेस्ट रेट जा रहा है यूएस में, और 2015 से 18 के बीच में 0 से 2.5% गया था। उस दौरान भी यूएस बाजार 30% बढ़े थे। आप में से किसी को याद है 15 से 18 के बीच में हिंदुस्तान बाजार कहां थे? पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे? पॉजिटिव थे। तो सर एक ही चीज मेरे को जो समझ में आती है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन लेके ना आपका भला होने वाला है ना मेरा भला होने वाला है। कहने सुनने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। गुजरात में मोदी जी ने दारू बंद की हुई है। बॉम्बे आइए और रात को शाम को बैठेंगे एक गिलास लेके और 2 घंटे तक इस बारे में चर्चा करेंगे। निष्कर्ष फिर भी कुछ नहीं निकलेगा। घूम फिर के निष्कर्ष ये निकलेगा कि यार वही सब छोड़ो, बढ़िया कंपनी ढूंढो, बढ़िया कंपनी के अंदर निवेश करो, 5 साल तक बैठे रहो, पैसा बनेगा। अब अयूब भाई ने एफआईआई निवेश की बात करी, बहुत सही उन्होंने बोला। अगर मैं थोड़ी बहुत गुजराती आपकी समझ पाया कि इतना निवेश निकला फिर भी बाजार स्थिर रहे, बिल्कुल सही बोला आपने। ये पिछले 30 साल का लेखा झोंका है जब से हिंदुस्तानी बाजार विदेशी निवेशकों के लिए खुले थे। 1992 में हिंदुस्तानी बाजार विदेशी निवेशकों के लिए खुले और ये हर साल का उनका निवेश है। जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं दैट इज इनफ्लो, जो पैसा आया हिंदुस्तान में, और कुछ वर्ष बीच में ऐसे रहे हैं जहां पे आउटफ्लो हुआ, पैसा हिंदुस्तान से बाहर निकला। आप देख सकते हैं पिछले 30 सालों में केवल 3 ऐसे वर्ष रहे हैं जहां पे पैसा निकला है। 2008-9 आप में से बहुतों को याद होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड था, लीमन क्राइसिस भी उसको बोला जाता है। इसमें निवेश बाहर निकला। 2015 से 15-16 आप में से किसी को याद नहीं होगा, ये वो वर्ष था जब फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू किया था यूएस में, और 6 महीने के लिए बाजार थोड़े कमजोर हुए थे, और उस दौरान भी हिंदुस्तान से निवेश बाहर निकला था। और जो मौजूदा साल है इसमें भी हमने एक बहुत ज्यादा जबरदस्त एक आउटफ्लो देखा है, और अब पिछले 1 महीने से हम वापस से इनफ्लो भी देख रहे हैं। देखिए मेरा एक मानना है, जब तक हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ की दरें 6-7% के दायरे में रहेंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। 3-4 साल में, 5-6 साल में एक साल आएगा जब विदेशी निवेशक बाहर पैसा लेके आएंगे, लेकिन वो फिर वापस आएंगे। जिस साल में भी पैसा बाहर निकला है उसके अगले साल देखिए अच्छी खासी इनफ्लोज हमने देखी हैं, चाहे वो ये साल रहा हो, चाहे वो 2015 रहा हो। और मेरा ये मानना है अगले 12 महीने में अच्छा निवेश हिंदुस्तान में आएगा। बस एक शर्त है जो हम सबको ध्यान रखनी है कि हमारे देश के अंदर ग्रोथ की रेट्स 6-7%, 6.5%, 7.5% रहनी चाहिए। देखिए आप सबको ये मालूम है कि हिंदुस्तान इस वक्त विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, हिंदुस्तान, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बावजूद इस साइज के $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मोदी जी बार बार ये बात हमें याद दिलाते रहते हैं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद हम 6 से 7% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे से जो बहुत छोटी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो रशिया हो, जो ब्राजील हो, इंडोनेशिया हो, टर्की हो, जो हमसे आधी या कोई तो हमसे 1/4 भी हैं, वो हमसे आधी रेट पे ग्रो कर पा रही हैं, कोई 3%, कोई 4%। और जो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तो जाहिर बात है हम कहीं नीचे ग्रोथ रेट दिखा पा रही हैं। जब तक ये देश 6 से 7% ग्रोथ से आगे बढ़ता रहेगा, मुझे लगता है अगले 30 साल तक यही सिलसिला रहेगा, क्योंकि फॉरेन निवेशक केवल यही ढूंढते हैं कि देखिए कौन सी इकोनॉमी में ग्रोथ है और कौन सी इकोनॉमी के अंदर उस ग्रोथ के चलते हमें अच्छे बिजनेस मिल सकते हैं जिसमें हम निवेश करके अपनी पूंजी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, तो हिंदुस्तान के अंदर बजाज फाइनेंस या HDFC या कोटक जैसी संस्थाएं हैं जो 20, 25, 30% से आगे ग्रोथ दिखा पा रही हैं। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सबको मालूम है। बट सर आज एक और भी चीज मालूम कर लीजिए,
उस कंपाउंडिंग को आप ब्रेक कर देते हैं। जहां आप ये बोलते हैं बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, महंगी है, अभी निकल जाता हूं, कंपाउंडिंग इज ब्रोकन। कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर बनने के लिए आपको उसके अंदर बने रहना है हमेशा। जिस दिन आपने सोचा कि बढ़िया कंपनी है, अभी बेचता हूं, 6 महीने बाद खरीदूंगा, कंपाउंडिंग इज ब्रोकन। आप कभी भी उस कंपाउंडिंग के भागीदार नहीं बन पाएंगे। आपको लगता है ऐसा कि देखिए मैं ऊपर बेच के नीचे खरीद लूंगा, वो कभी नहीं हो पाता। बंबई में एक कहावत है, आप में से कई लोग बंबई आए होंगे। बंबई में साउथ बॉम्बे है, नॉर्थ बॉम्बे है। साउथ बॉम्बे मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं कह सकता हूं अपने करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, वो साउथ बॉम्बे चले जाते हैं, एक अच्छा बढ़िया मकान वहां खरीद लेते हैं। और जो लोग बंबई नए नए आए हैं, जो इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर के शुरुआती दौर पे हैं, वो बंबई में नॉर्थ की तरफ को रहते हैं, सबर्ब्स भी जिसको बोला जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 30-40 साल तक लगे रहते हैं, फिर भी नॉर्थ में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेडर। बंबई शेयर बाजार में एक कहावत है कि कोई ट्रेडर साउथ बॉम्बे शिफ्ट नहीं हो पाया 50 साल में, और ये हकीकत है, क्योंकि कोई ट्रेडर कभी इतनी बड़ी पूंजी अपने लिए कमा ही नहीं पाया। उसका दिमाग और उसकी सोच वहीं पड़ी हुई है, यहां 10% कमा लूं, यहां 5% कमा लूं। वो बजाज फाइनेंस की तरह कभी भी 1000, 2000, 3000, 4000% कमा ही नहीं पाया। उसकी सोच का दायरा वही 5, 10, 15% ही है। आप अपनी सोच का दायरा रखिए कि भाई मेरे को एक ऐसी जगह निवेश करना है जहां मेरी पूंजी अगर मैंने लगाई 1 लाख तो वो कम से कम 25 लाख बने। और वो जब ही हो सकता है जब आप बतौर निवेशक सोचें, जब आप ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर प्रगति के अवसर कौन कौन से क्षेत्रों में आएंगे, कौन कौन से सेक्टर्स में आएंगे, और उन सेक्टर्स में सबसे बढ़िया कंपनीज कौन सी हैं, उनमें आपको निवेश करना है। ये अपने आप में कोई आसान चीज नहीं है ऐसी कंपनीज को ढूंढ के निकालना, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं ये फिर भी उतना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल चीज है कच्चे कान का नहीं होना और उसमें बने रहना, क्योंकि कोई ना कोई आके आपके कान में जाके बोल के जाएगा कि यार बजाज फाइनेंस खरीदा तो अच्छा है, अगले 6 महीने में गड़बड़ होने वाली है, और आपकी कंपाउंडिंग को ब्रेक करके जाएगा। तो देखिए, निवेश अपने आप में, ये वॉरेन बफेट बोलते हैं कि निवेश अपने आप में कोई बहुत ज्यादा जिसको हाई आईक्यू आदमी बोला जाए, हाई आईक्यू आदमियों के लिए नहीं है। ये व्यवसाय हाई ईक्यू आदमियों के लिए है। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशंट। आपको बहुत स्थिर रहना है, यहां से बहुत स्थायी रूप से अपनी सोच को लेके आगे चलना है। आपको कभी भी इमोशनल नहीं होना है। बाजारों का काम ही है ऊपर नीचे रहना, वो बनाए ही इसी चीज के लिए गए हैं, आपको उस चीज का फायदा उठाना है। वॉरेन बफेट के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम, आप में से कई लोगों ने उनका नाम में सुना होगा। केवल एक बार अपने, वो 92 साल के हुए हैं पिछले हफ्ते ही, 92 साल में केवल 2 साल वो अपने होम टाउन को छोड़ के, जो है ओमाहा, वो छोड़ के न्यूयॉर्क गए थे। उनको न्यूयॉर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गए केवल इसलिए थे क्योंकि किसी ने उनको बताया कि भाई देखिए ये कोई बहुत बढ़िया विद्वान आदमी है बेंजामिन ग्राहम, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंस पढ़ाते हैं, खुद निवेशक भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो और बहुत ज्यादा उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत प्रतिभाशाली इन्वेस्टर खुद रहे हैं। तो उनसे पढ़ने के लिए वो 2 साल गए। बेंजामिन ग्राहम ने 1930 के अंदर कई किताबें लिखी। उनमें से एक किताब थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आपके पास कभी समय हो तो उसको पढ़िए। उस किताब में उन्होंने एक काल्पनिक आदमी का वर्णन किया है। वो काल्पनिक आदमी को उन्होंने नाम दिया है मिस्टर मार्केट। अब अचंभे की बात यह है कि 1930 मतलब 100 साल हो गए करीबन। जो 100 साल पहले उन्होंने उस किताब में लिखा है, जो और आज भी जो हम महसूस करते हैं बाजारों में, उसमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इस आदमी का वर्णन इस तरह से किया कि देखिए ये मिस्टर मार्केट है। उन्होंने मार्केट को एक आदमी के रूप में सामने प्रस्तुत किया और उसको मिस्टर मार्केट का नाम दिया और बोला कि देखो ये जो मिस्टर मार्केट है, ये एक ऐसा आदमी है, जो केतन भाई ने बोला, जो हमेशा नशे के अंदर धुत रहता है। उसको घर का जाने का रास्ता क्या है खुद मालूम नहीं। कभी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो जो बिजनेस कल 100 रुपए पे मिल रहा था उसके लिए वो 200 रुपए देने को तैयार हो जाता है। कभी वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है
कि जो बिजनेस कल 100 रुपए में अच्छा लग रहा था वो आज 50 रुपए में भी बेचने को तैयार हो जाता है। और ज्यादा करके मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो रवैया है वो ऐसा ही है। और उन्होंने बोला कि अगर आप वो शख्स बन सकते हैं जो इसके एकदम विपरीत सोचें कि भाई अगर मिस्टर मार्केट पागलपन में कोई चीज 100 रुपए की 50 रुपए में बेचने को तैयार है तो आप फायदा उठाने के लिए जाएं। और अगर मिस्टर मार्केट कोई चीज जो 100 रुपए की है उसको 200 रुपए में खरीदने को तैयार है तो भी आप उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, आप पे इन सब चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं। उनकी सारी टीचिंग जो थी वो यही थी कि भाई आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। ऑफ कोर्स उनकी टीचिंग्स इस बारे में भी थी कि कौन सी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर उनका जोर इस बात पे रहा कि भाई आपको मार्केट से प्रभावित नहीं होना है, मार्केट से आपको फायदा उठाना है। तो नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं जो वेल्थ क्रिएशन में बहुत जरूरी है। देखिए हकीकत यह भी है कि बहुत चुनिंदा, बहुत कम कंपनीज मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं। आप सबका भी ये अनुभव रहा होगा, क्योंकि आप देख के लग रहा है कि आप में से बहुत तजुर्बेकार निवेशक भी हैं, कि पिछले 10, 20, 30 सालों में भी केवल गिनी चुनी ऐसी कंपनीज रही हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है। कंपनीज भले ही हिंदुस्तान के बाजारों में हजारों लिस्टेड हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 50-60 कंपनियों ने ही एक बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन की बुनियाद रखी है। इसको हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। और ये 80-20 रूल केवल वेल्थ के अंदर या इन्वेस्टमेंट्स में या निवेश के अंदर यूज नहीं होता। 80-20 रूल करीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट, एक इटालियन अर्थशास्त्री ने इस थ्योरी को आगे किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि देखिए जो भी घटनाक्रम आपकी आंखों के सामने होते हैं वो ज्यादा करके बहुत छोटे माइनॉरिटी फैक्टर्स की वजह से होते हैं। हर चीज के अंदर 80-20 रूल है। अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ग्लोबली या इंडिया में, 20% पीपल आर कंट्रोलिंग 80% ऑफ द वेल्थ। सही? अगर आप बिजनेस के संदर्भ में बात करें, 20% बिजनेसेस आर कंट्रोलिंग 80% ऑफ प्रॉफिट। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाइए, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाइए, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चले जाइए। म्यूचुअल फंड में 45 म्यूचुअल फंड है करीबन इस देश में। 45 का 20% हुआ करीबन 10। ऊपर के 10 म्यूचुअल फंड आर कंट्रोलिंग 80% ऑफ द बिजनेस। हो सकता है 80 नहीं 85 हो, कम नहीं होगा। हर चीज में ये 80-20 रूल है। और इसका एक सीधा साधा जो आप कह सकते हैं लेना देना हमारे इन्वेस्टमेंट से है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना कि वेल्थ क्रिएशन के लिए भी करीबन 20% कंपनीज ही कामगार साबित होंगी। आपको चारों तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 20% कंपनीज आपको सारी वेल्थ क्रिएट करके देके जाएंगी। उसके अलावा जहां जहां आप निवेश करोगे एक्चुअली आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। और ये स्टडी यूएस की है 1989 से 2015। ये है 80% कंपनीज जिन्होंने जीरो या नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये रिटर्न है वाई एक्सिस पे 0%, 20%, 40%, 60%। यू कैन सी 80% कंपनीज ने जीरो या नेगेटिव रिटर्न दी है। देखिए जयप्रकाश इंडस्ट्रीज अपने आप में 2003 से 2008 के बीच में बहुत बढ़िया स्टॉक रही होगी। वो बिजनेस कभी अच्छा नहीं था, लेकिन 2008-9 के बाद वो कंपनी ही खत्म हो गई। इसको तो आप वेल्थ क्रिएशन नहीं मानेंगे। और यही चीज है ज्यादा करके ऐसी कंपनीज के लिए। बलरामपुर चीनी कभी किसी जमाने में बहुत अच्छा करी होगी, लेकिन उस कंपनी की हालत आज अच्छी नहीं है। बजाज हिंदुस्तान तो कहते हैं कि इनसॉल्वेंट है, वो अब एनसीएलटी के अंदर चली गई है। फॉर वेल्थ क्रिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कंसिस्टेंटली किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी 2-3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर आपने अच्छा किया लेकिन उसके बाद आप फिर नीचे गिरे, तो उसको आप वेल्थ क्रिएशन नहीं मान सकते।
आपको सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि कंपाउंडिंग जब ही हो सकती है जब आप सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ें। 80% कंपनीज ने वेल्थ लुटाई है, केवल 20% कंपनीज ने वेल्थ बनाई है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको फोकस करना है केवल चुनिंदा कंपनीज के ऊपर। अब ये देखते हैं कि वो चुनिंदा कंपनीज कौन सी हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं द प्राइमरी टेस्ट ऑफ अ गुड बिजनेस इज द अचीवमेंट ऑफ अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से आप सब वाकिफ हैं इस कॉन्सेप्ट से। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। आपने 100 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगाए, वो आपकी पूंजी है, उसको आप कैपिटल बोलिए, और वो 100 करोड़ आपको हर वर्ष कितने प्रॉफिट वापस देता है वो बन जाता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर 10 करोड़ वापस देता है तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ 10%। अगर 20 करोड़ वापस देता है तो हुआ 20%। अगर 50 करोड़ वापस देता है तो वो हुआ 50%। अब आप मुझे एक बहुत सरल चीज का उत्तर दीजिए, कौन सा व्यवसाय अच्छा है? 10%, 20%, 50%? 50%? इस बारे में किसी को कोई शक है? पक्की बात सर? हाँ जी सर। ईयर बाय ईयर, every year one business is giving back 10 crores, the other is giving 20 crores, the third is giving 50 crores. कौन सा अच्छा है? पक्की बात है? अब आप ईमानदारी से ये बताइए, आप सब ने स्टॉक मार्केट में तो निवेश किया होगा। जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया, बहुत लोगों ने आपको बहुत चीजें बोली होंगी जिसके चलते आपने निवेश किया। आपने सबसे मूल रूप से जो सबसे जरूरी चीज है, आपने ये चेक किया कि उसका रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है। अगर आप कोई बिजनेस कल लगाने जाते हो, आप उसकी प्रोजेक्ट स्टडी करते हो, अप्रेजल करते हो, कंसल्टेंट को बिठाते हो, बोलते हो यार इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कितना ग्रो करेगा, सब करने के बाद बोलते हो चल सब कुछ हो गया, ये बता प्रॉफिट कितना कमाएगा, मार्जिन कितनी देगा मुझे। और ये सब करने के बाद आप नीचे आते हो कि यार अगर 100 करोड़ लगाता हूं तो हर साल 10 देगा, 15 देगा, 20 करोड़ देगा, कितना देगा, करेक्ट? और बहुत सरल सी बात है, अगर किसी ने बोला कि यार ये तो हर साल का 10 करोड़ देगा, तो आप बोलते हो कि यार 10% रिटर्न ऑन कैपिटल देगा, उतना तो मैं म्यूचुअल फंड में लगा के कमा लूंगा, इतनी जद्दोजहद क्यों करनी है फिर मुझे। अगर 20% देगा तो आप बोलते हो कि हाँ यार अब इस बात में कुछ दम है, ये रिस्क लिया जा सकता है। और अगर वो 30% देगा तो आप बोलते हो कि यार ये तो मैं कल ही से शुरू करता हूं। मैंने आपको बताया कॉमन स्टॉक इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट बिकमिंग अ पार्ट ओनर। आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। आप जब निवेश करने जाते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो है कि यार टाटा स्टील का रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, आप वो मालूम करते हैं या नहीं करते? सच्ची बात बताइएगा। सर ने एकदम सच बोला, नेवर। और मैं बोलता हूं उसके बिना आप आगे बढ़े ही कैसे? एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि केवल 10-15% कंपनी ही वेल्थ क्रिएट कर पाएंगी, क्योंकि हकीकत यह है कि केवल 10-15% कंपनी ही 15, 20, 25, 30% रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर पाती है। आप सब अपने आप में बिजनेसमैन हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने में मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद बिजनेस चलाए हुए हैं, आपको खुद मालूम है 100 करोड़ लगाने पे 30 करोड़ हर साल, जैसे सर ने बोला, वापस मिलना एक बहुत मुश्किल चीज है। बट एशियन पेंट्स तो हर साल 35 करोड़ देता है, 35% देता है, पिछले 20 साल से देता आ रहा है। मारुति हर साल 30% पिछले 20 साल से रिटर्न ऑन कैपिटल देता आ रहा है। पिडिलाइट पिछले 20 सालों से 35 से 40% देता आ रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस 50% देते आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई दे आर वेल्थ क्रिएटर्स। अब आप बात कर लो जयप्रकाश की, तो वो मुश्किल से 8-10% दे पाया, कंपनी इसलिए खत्म हो गई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर इज सेइंग। द प्राइमरी टेस्ट ऑफ अ गुड बिजनेस इज द अचीवमेंट ऑफ अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज द प्राइमरी टेस्ट। अगर बिजनेस मजबूत है रिटर्न ऑन कैपिटल के मामले में, केतन भाई ने बात करी बजाज फाइनेंस की, हिंदुस्तान के अंदर उससे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी किसी बिजनेस की नहीं है। सॉरी, बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में 22-23% की रिटर्न ऑन इक्विटी होना एक बहुत रेयर चीज है।
बढ़िया से बढ़िया बैंक जैसे HDFC बैंक 17-18% कमा पाते हैं, बजाज फाइनेंस 22-23% कमाता है, जो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत मुश्किल चीज है। इसीलिए वो इतना बढ़िया वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ। अब एक और वॉरेन बफेट की कोट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे नतीजे देखते हैं। By thinking and investing long term, or just by lengthening the time you stay with a good quality business, you can create wealth that you would have never imagined. आप सब इससे सहमत हैं? अभी देखते हैं किस तरह से काम करती है। हमने टाइम पीरियड चूज किया 1 जनवरी 1992 से 19 अगस्त 2022, 30 साल का टाइम पीरियड। हमने 6 कंपनी ढूंढी और ये 6 ऐसी कंपनी थी जो 1992 में भी बहुत अपने आप में बड़ी कंपनी थी, एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी। इन 6 की 6 कंपनी को आप मान सकते हो कि बहुत बढ़िया कंपनी है। एशियन पेंट्स, HDFC, नेस्ले, SBI, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, राइट। पिछले 30 सालों का जो रिटर्न है इन 6 कंपनीज का वो इधर है। सबसे ऊपर है एशियन पेंट्स करीबन 26%, उसके बाद है HDFC करीबन 23%, नेस्ले करीबन 20%, SBI करीबन 14.5%, टाटा स्टील करीबन 11%, टाटा मोटर्स करीबन 10%। राइट सर? मैं अपने आप में 14, 11 और 10 को कोई बहुत बुरी रिटर्न नहीं बोलूंगा, ठीक है ये भी। बट सर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए आए हैं, हमारे लिए अच्छा काफी नहीं है, हमें बेस्ट चाहिए। एकदम फेयर मीन से कोई गलत काम ना करते हुए हमें अपनी 1 लाख रुपए की पूंजी को 1 करोड़ या 10 करोड़ बनाना है इन द मोस्ट लेजिटिमेट मैनर, एकदम फेयर तरीके से। तो ऑब्वियसली हम 10-11 से खुश नहीं है, हमें 20-25%, 26% चाहिए। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हम सब इस चीज से वाकिफ हैं। आपने वो सब चीजें तो सुनी होंगी कि कोई राजा थे जिन्होंने खुश होके अपने एक मंत्री को बोला कि भाई बोल तू क्या चाहता है। उसने बोला कि सर चेस बोर्ड पे शुरुआत करो, सबसे पहले खाने में 1 चावल का दाना डालो, दूसरे खाने में दुगना कर दो 2 डालो, तीसरे खाने में वापस दुगना कर दो वो 4 दाने हो जाएंगे, चौथे खाने में 8 दाने, और ऐसे चलते रहो। कितने खाने होते हैं चेस में? 64। अब जिन लोगों ने स्टोरी नहीं सुनी है मैं उनको बता दूं कि 64वें खाने से कहीं पहले राजा अपनी पूरी की पूरी संपत्ति हार चुका था। बाद में हाथ कटवा दिए थे उसके, वो अलग बात है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 चावल का दाना 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह मेरे ख्याल से 45वें या 46वें खाने आते आते पूरी राजगद्दी और पूरा राज्य लुट चुका था। देयरफॉर ये 14% देखने में बहुत ज्यादा खराब नहीं लगता, और 14 और 20 में ऐसा भी नहीं लगता कि जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कंपाउंडिंग इज दी 8th वंडर, वो यहां समझ में आता है। एशियन पेंट्स इस 30 साल में 1407 गुना बढ़ा है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 14 करोड़ रुपए हो गए होते। HDFC ये 30 सालों में 600 गुना बढ़ा है। नेस्ले ये 30 सालों में 290 गुना बढ़ा है। SBI इन 30 सालों में 63 या 64 पकड़ लीजिए, 64 टाइम्स। टाटा स्टील 23 टाइम्स, टाटा मोटर्स 19 टाइम्स। अब जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। एंड देयरफॉर नाउ गो बैक एंड रीड दिस अगेन। सर एक एक चीज जो इन्होंने इस वाक्य में लिखी है उसको बहुत ध्यान से समझिए। पूरा जीवन का उनका लेखा जोखा जो उन्होंने खुद अनुभव किया और इतनी वेल्थ क्रिएट करी, उसका सारांश है बाय थिंकिंग एंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है, आपको सोचना है 5 साल 10 साल के हिसाब से। एंड लेंथनिंग द टाइम यू स्टे विद द बिजनेस। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे उससे मतलब नहीं है, बजाज फाइनेंस में बने रहना है। यू कैन
एंड स्टेइंग विद अ गुड क्वालिटी बिजनेस. गुड क्वालिटी बिजनेस हमने कैसे अभी परिभाषित किए? हाई रिटर्न ऑन इक्विटी. यू कैन क्रिएट वेल्थ यू वुड हैव नेवर थॉट ऑफ. एशियन पेंट्स अपने आप में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसके बारे में 1991 में आपको या मेरे को मालूम नहीं था. वो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ पेंट कंपनी जब भी थी, अच्छी खासी नोन कंपनी थी. अगर आप दूरदर्शन पे एड्स देखें सन 80 के दशक में सबसे ज्यादा एशियन पेंट्स और HUL के ही एड आते थे और नेस्ले के भी आते थे. ये वही कंपनी थी जो एक, जिसे आप कह सकते हैं, हाउस होल्ड ब्रांड थे. हम सब जानते थे उसके बारे में, हमारे बच्चे भी उसके बारे में जानते थे. मतलब मैं खुद बच्चा था उस टाइम, तो वो हम सब उसके बारे में जानते थे. यूजिंग दोस हाउस होल्ड ब्रांड्स you have created wealth. Why? Because they were great companies. Why? They created very high return on equity. And most importantly, आप डटे रहे, आप हिले नहीं. उस दौरान हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हुई, सोना गिरवी रखना पड़ा, आप हटे नहीं. उसके बाद हिंदुस्तान ने परमाणु टेस्ट किए, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए. इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें उस दौरान 1-2 साल गड़बड़ हुई. उस दौरान एक बहुत बड़ा युद्ध भी छिड़ा 99 में पाकिस्तान के साथ, कारगिल युद्ध. आप फिर भी बने रहे. 2001 के अंदर सबसे पहले 9/11 घटना हुई, फिर उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, टेक मेल्टडाउन हुआ. 2008 में लीमन क्राइसिस हुआ. लोगों ने बोला अब तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं. 2020 में पेंडेमिक हुआ. लोगों ने बोला कि यार ये तो दुनिया ही अब खत्म होने वाली है. आई एम अश्योरिंग यू, हर 3-4 साल में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा. 1930 के दशक में, मैं एग्जैक्ट साल भूल रहा हूं, एक बहुत बढ़िया किताब लिखी गई थी जिसका नाम था, यूएस में, जिसका नाम था ट्रायम्फ ऑफ द ऑप्टिमिस्ट्स. मतलब सकारात्मक सोच वाले निवेशकों की जीत. ट्रायम्फ ऑफ द ऑप्टिमिस्ट. इक्विटी मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट. दुनिया बेहतर हो रही है, यह आपको सबसे पहले जहन में उतारना है. Everything that is going on is going in the progressive direction. Regressive नहीं हो रहा है. अगर आप सोचोगे नहीं यार 100 साल पहले अच्छा था अब बुरा हो रहा है, वो आपकी कल्पना है. आपके अंदर का वो पेसिमिस्ट, नकारात्मक आदमी आपको इस तरह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है. सकारात्मक सोच वाला आदमी अपने चारों तरफ देखता है, बोलता है कि यार सूरत 20 साल पहले ऐसा था और आज ऐसा हो गया है, और 20 साल बाद सूरत यहां से भी आगे बढ़ेगा. आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है. छोटे मोटे घटनाक्रम हमेशा आते रहेंगे. कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जहां पे नेगेटिव इवेंट्स ना हो, नेगेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना हो. अगर मजबूत बिजनेस है, वो क्षमता रखता है इन नेगेटिव डेवलपमेंट्स को अब्सॉर्ब करने की और आगे बढ़ने की. और इसी सोच से आपको आगे बने रहना है. और जरूरी चीज ये भी है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, तो ये आसान भी नहीं है. सबसे पहली चुनौती है बढ़िया बिजनेस ढूंढना. जैसा कि मैंने कहा, दूसरी बड़ी चुनौती है बिजनेस में बने रहना. अब इन्फो एज एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, जैसा कि केतन भाई ने बोला, इंडिया की वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेट कंपनीज. बहुत वेल्थ क्रिएट करी गई है. 2006 में लिस्ट हुई थी. मैं वहां की बात भी नहीं करता, 2010 से भी अगर बात करूं, 2010 से आज तक करीबन 28% रिटर्न मिला है, 28% CAGR. और ये जब ये ऊपर से करीबन 50% नीचे करेक्ट हुआ है. 1 अप्रैल से 19 अगस्त, मतलब हमने जो ये रिटर्न कैलकुलेट करी है, जब ये ऊपर से नीचे इतना गिरा हुआ है. अगर हम इसको जनवरी 2022 में लेते तो ये 28% की जगह कहीं ना कहीं 35% दिखाई देता. लेकिन ये 28% रिटर्न लेने के लिए बहुत उतार चढ़ाव देखने की क्षमता आप में होनी चाहिए. आपका एक सीधा ध्यान, जैसे वॉरेन बफेट ने बोला, लेंथनिंग द टाइम यू स्टे विद अ गुड क्वालिटी बिजनेस. आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि भाई मैं मजबूत बिजनेस के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहूं. लेकिन वो जुड़े रहने के लिए ये आपको सारी चीजें जो हैं इनसे होके गुजरना है. ये 25% गिरा 2014 में, ये 27% गिरा 2015 में, 2019 में फिर से 20% गिरा, 2020 में 45% गिरा, 2022 में 50% गिरा. एंड दिस इज वेरी नॉर्मल. अगला स्टॉक जुबिलेंट फूडवर्क, डोमिनोज,
27% रिटर्न लास्ट 10 सालों की। इसके बावजूद के ये भी 50% गिरा हुआ है, लेकिन ये 2014 में 30% गिरा था, 2016 में 50% गिरा था, 2018 में 30% गिरा था, 2020 में भी 35% गिरा था। दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर स्टॉक्स। और यहीं पे हम कहीं ना कहीं अपनी कन्विक्शन लूज करके बाहर निकल आते हैं। यहीं पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार 30% गिरा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यहीं आप बाहर निकल के आ जाते हो। यू ब्रेक कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का इंपैक्ट आप ब्रेक करके निकल जाते हो, क्योंकि आप स्टॉक प्राइस से प्रभावित हो रहे हो। बिजनेस की अगले 10 साल की क्षमता क्या है उसके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है। जैसा कि वॉरेन बफेट के टीचर ने 1930 में बोला था, आप मिस्टर मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हो। यही बिजनेस जो जनवरी में जुबिलेंट, जो इतना मजबूत था और आप सोचते थे कि हिंदुस्तान में अगले 10 साल में बहुत सारे डोमिनोज के आउटलेट खुलेंगे, वहीं जुलाई में आते आते आपको जुबिलेंट के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कहीं ना कहीं अपना विश्वास आपका जो है डगमगा गया। स्टॉक प्राइस आधा हो गया, और उस आधे स्टॉक प्राइस पे भी आपकी हिम्मत और हौसला जो है कहीं ना कहीं पस्त है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। हाउ टू बी इमोशनली स्टेबल, हाउ टू रिमेन फोकस्ड ऑन द बिजनेस एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस अगले 10 साल में क्या कर सकता है उसके बारे में सोचते रहना, ना कि के बिजनेस का भाव क्या है उसके बारे में सोचना। तो सर मेरी प्रेजेंटेशन यही थी। चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो टाइटन हो जिसके अंदर भी एक सेम घटनाक्रम रहे हैं, या वो हेवल्स हो जिसमें भी सेम घटनाक्रम रहे हैं, हर स्टॉक हर 1-2 साल में कोई ना कोई झटका आपको जरूर देगा। उसके कई फैक्टर्स रहते हैं। स्टॉक प्राइस से प्रभावित आपको नहीं होना है। और जैसा कि वॉरेन बफेट बोलते हैं, मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द एक्टिव इन्वेस्टर टू द पेशेंट इन्वेस्टर, और ये हकीकत है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछिए। थैंक यू अजय भाई फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। आपने जैसे बताया सारी बातें एकदम बहुत अच्छी है। मेरे को तो खाली एक चीज़ का आप जवाब दीजिए कि आपने जैसे चार्ट में दिखाया कि 1992 से लेकर के 2022 तक बताया आपने, ये कंपनियों का इतना इतना रिटर्न और ये मल्टीबैगर कंपनियां हो गई है, इस तरह से हुआ। लेकिन ये सब होने के बाद में चार्ट में पता चलता है, उसके पहले कोई नहीं बताता है। उसके पहले अगर कोई बतावे तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अपने एक बहुत बड़े, उनका नाम ले सकते हैं क्या, जो चार्टिस्ट है टीवी पे आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो जाएगी। मिस्टर सुखानी साहब हैं। तो जब बाजार गिरा था, सुदर्शन सुखानी, हाँ? सुदर्शन सुखानी, हाँ, सुखानी साहब, जब बाजार गिरा था तब मैंने उनसे सवाल किया था, यहाँ पर 1000 आदमियों का कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार, कि हम लोगों के पास में सब लोग, आप लोग बोलते ब्लू चिप चल लो, हमने सबने ब्लू चिप लेकर के भर लिए, और उसके बाद में ब्लू चिप शेयर जो है 10% 15% पे आ गए, और जितने भी छोटे शेयर थे वो सब मल्टीबैगर आ गए, ऊपर बन गए। तो उस सुखानी साहब ने उस समय ये कहा था कि हु टोल्ड यू टू बाय ब्लू चिप शेयर्स, आप छोटे शेयर लीजिए। जब हमने छोटे शेयर लिए तो वो डूब गए, और मल्टी जो अपना ब्लू चिप कंपनियां थी वो ऊपर चले गए। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट शेयर मार्केट। लेकिन मेरा साथ में ये भी कहना है कि जैसे जितने भी चार्ट वगैरह दिखाते हैं, ये सब बातें बताते हैं इतने साल में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आदमी को अगर करोड़पति बनना है या वेल्थ क्रिएट करना है तो वेल्थ क्रिएट यहीं से होती है। लेकिन उसको आपको जो है बीच में क्या बोलते हैं, ब्रोकन नहीं करना है, कंपाउंडिंग में ही होती है। और एक चीज और बता दूं जो मेरा खुद का अनुभव है, हम घबरा जाते हैं कि वो 8000 का 2000 का शेयर 500 रुपया हो गया, चलो इसको निकाल दो। हमारी इंडियन मेंटेलिटी इसी में निकल जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो शेयर इतने उतार चढ़ाव के बाद में लास्ट में जाकर टॉप पे है,
तो वो कैसे हुआ? वो वेल्थ क्रिएट उसी तरह से होती है। तो मुझे खाली आपसे एक ही बात का जवाब चाहिए कि आप आज हमको कुछ ऐसा बताइए ना कि 20 साल बाद में, 25 साल बाद में इस तरह से हो जाएंगे। कुछ ऐसी टिप्स दीजिए। देखिए सर, मैं आपको पिछले 1 घंटे में जो प्रेजेंटेशन दे रहा था बहुत हिंट दे चुका हूं। मैंने आपको हाई रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताया और मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, यही दोहराना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि अगले 20 साल में कौन से ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे। मैं बोल रहा हूं अगले 20 साल में भी वही आगे निकलेंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त है। क्योंकि ये आप इसको चार्टिस्ट क्या बोलते हैं, कौन क्या प्रेडिक्ट करता है, किसके पास अलादीन का चिराग है कि भाई वो बता सके अगले 4 साल में होगा। मैं कहता हूं उसको आप एक तरफ रखिए, आप दूसरी तरफ समझिए कि ये जाहिर बात है कि कहीं हवा में तो कोई चीज क्रिएट हो नहीं रही। कोई चीज क्रिएट हो रही है तो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ बहुत जबरदस्त कोई बिजनेस कर रहा है, इसीलिए वो वेल्थ क्रिएट हो रही है। और वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद एक बहुत ज्यादा सरल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो 100 करोड़ के निवेश पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा जाएगा वही वेल्थ क्रिएटर होगा, जिसको आप रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, जिसको आप रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको वापस से वही कंपनियां ढूंढनी है जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है। और मैं समझता हूं आप सब अपने व्यवसायों में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि आपके पास वो समय नहीं है। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन यह है, आप अपनी पूंजी हमें दीजिए, हमारा यही काम है सुबह से शाम तक। और हमारी पूरी की पूरी टीम और पूरी की पूरी संस्था केवल इसी कार्य में जुड़ी रहती है कि किस तरह से आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा और आपकी पूंजी को हम आगे बढ़ाएं। बहुत सही बात। तो यही म्यूचुअल फंड का जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मेरा सवाल यह है कि मिस्टर मार्केट अनजान तो है बट काफ़ी स्मार्ट भी रहता है काफ़ी बार। सो से फॉर एग्जांपल उसको मिस्टर मार्केट को कुछ ट्रेंड्स, कुछ जो कंपनीज है जो हाई आरओसी, हाई आरओई पे चल रही है फ्रेंड्स ईयर्स, वो जल्दी दिख भी जाता है कि ये अभी ये पार्टी खत्म होने वाली है, तो वो लोग पीज और वो सब डिस्काउंट भी जल्दी करने लगते हैं। सो इन सच केसेस हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार्टी ज़्यादा टाइम चलने वाली है, ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने के टाइम पे है, हाउ कैन बी? ठीक है, यह बढ़िया सवाल है। मैं इसके अंदर एक कड़ी और जोड़ देता हूँ। आपने बात की एग्जिट की, मैं बात कर देता हूँ एंट्री की, कि भाई कैसे पता चले कि कोई कंपनी बहुत बढ़िया है, अगले 10-15 सालों के अंदर बहुत अच्छा करने वाली है। जब आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो 2, 3, 5 साल की तो बात करते नहीं, कम से कम 15, 20, 25, 30 सालों की बात करते हैं। अगर आप उसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें, पहले के 5-6 साल और बाद के 5-6 साल अगर आपने गंवा भी दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, इन्फोसिस लिस्ट हुई थी 94 या 95 में, आपने उसको 94 में नहीं खरीदा, 95 में भी नहीं खरीदा, 96 में भी नहीं खरीदा, 97 में भी नहीं खरीदा, 98 में भी नहीं खरीदा, 99 में जाके कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये कंपनी तो बहुत जबरदस्त है। और पिछले 4-5 सालों में मैंने नारायण मूर्ति और उनके सारे को फाउंडर्स को भी देख लिया है, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर के हित के बारे में सोचते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस आईटी क्षेत्र के अंदर प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो भी मैंने समझ लिया। आपने 5 साल बाद निवेश किया, आप उसमें जुड़े रहे 20 साल। अब मान लीजिए कि 2022 के बाद, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि आईटी क्षेत्र के आने वाले 5 साल के जो ट्रेंड्स हैं वो कमजोर रहेंगे, पर मान लीजिए कि आपको लगता है कि चलो आईटी क्षेत्र अच्छा नहीं करने वाला, आपको 2022 में नहीं पता चलता, 2023 में भी पता नहीं चलता, 2024 में भी पता नहीं चलता, 2025 आते आते आपको लगा कि यार नहीं, वो आईटी क्षेत्र वो नहीं रहा जो 20 साल था। आपने 2025 में एग्जिट किया जब तक इन्फोसिस ऊपर से 30% नीचे आ चुका था। आप यही बोलना चाह रहे हैं? आप उसका CAGR निकालिए 20 साल का, मुश्किल से 1% का फर्क पड़ेगा।
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो जो मन में हमेशा एक जिसे बोलते हैं ना एंजाइटी रहती है कि आई शुड बी द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई एंड आई शुड ऑल्सो बी ऑन बोथ साइड, आई शुड बी द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई कि कौन से ग्रोइंग ट्रेंड्स है, आई शुड ऑल्सो बी द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई कि कौन से डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स हैं। तो आप उस चीज से अपने को अलग हटा के अगेन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे एंड आई मीन इट। आप वापस जाके CAGR रिटर्न निकालिए। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया है कि इन्फो एज ऊपर से 50% नीचे है फिर भी 29% CAGR है और वो केवल 10 साल का है। अगर मैं CAGR 20 साल में ले जाऊं तो उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द लॉन्गर द पीरियड CAGR रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न उतनी ही कम इंपैक्ट होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। डोंट बीट योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को मायूस ना समझिए क्योंकि आप ट्रेंड्स नहीं समझ पा रहे हैं। 2 साल लीजिए, 3 साल लीजिए, 5 साल लीजिए ट्रेंड समझने में। ट्रेंड समझने के बाद उसको बने रहिए 20 साल तक। इफ इन्फोसिस डज नॉट डू वेल ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप 20 साल तक उसमें बने रहो, मैं ये कह रहा हूं चलो पहले दूसरे तीसरे साल समझ में नहीं आया, चौथे साल में तो समझ में आ जाएगा। डोंट बी द फर्स्ट वन टू एग्जिट, इट विल स्टिल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। जी सर बोल सकते हैं, आवाज आपकी आ जाए। ये सर आपने इंटरनेट कंपनी की बात की इन्फो एज, तो अभी ये न्यू स्टार्टअप का क्या है जो लिस्टेड हो रहा है, जोमेटो है, पेटीएम है, उसका क्या लगता है? अभी इंटरनेट कंपनी हुआ ना वन टाइम। नहीं, इंटरनेट कंपनीज इस देश के अंदर कई बहुत अच्छी निकल के आएंगी अगले 10 सालों में। 100 कंपनी लिस्ट हो सकती हैं अगले 10 सालों में, क्योंकि जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, 72 यूनिकॉर्न तो आज की तारीख में है और ये सब 72 यूनिकॉर्न आगे जाके लिस्ट ही होंगी। तो मैं समझता हूं अगले 10 सालों में कम से कम 100 टेक्नोलॉजी इंटरनेट क्षेत्र की कंपनी बाजारों में आके लिस्ट होंगी। उसमें वही 80-20 रूल चलेगा। 10 हमको ढूंढ के निकालनी है जो वाकई में बहुत इन्फो एज की तरह बहुत मजबूत वेल्थ क्रिएट करेंगे। बट इस बारे में मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि कम से कम 10-15 बहुत मजबूत कंपनी हिंदुस्तान से निकल के आएंगी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। हम अपना टाइम लेंगे, हमारे सर के ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आज ही इंटरनेट कंपनी ढूंढो। हम अपना समय लेंगे, वो 1 साल लें, 2 साल लें, 3 साल लें, जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी है जिसे हमें बैक करना है। जो आपका सवाल है और जो आपका भी सवाल था, इन्फो एज 2006 में लिस्ट हुई थी, मैंने 2011 में निवेश किया था। मैंने 5 साल लिए पूरा समझने के लिए। 5वें साल में समझ में आ गया कि ये वो कंपनी है जिसे हमें बैक करना है अगले 20 साल के लिए। ऐसे ही और कंपनीज का भी चुनाव करेंगे। व्हाट अबाउट गुजराती बंधु अदानी एंड अंबानी जो ले रहे हैं पूरे कंपनी? सर मेरी पिटाई हो जाएगी यहाँ पे इस बारे में। जी नमस्कार सर। अभी आपने कहा कि अच्छे बिजनेस के साथ डटे रहना है, तो मैं एशियन पेंट के साथ भी डटा रहा और रिलायंस इंफ्रा के साथ भी डटा रहा, ICICI बैंक के साथ भी डटा रहा और यस बैंक के साथ भी डटा रहा। मैं ये जानना चाह रहा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ कि भाई ये ICICI बैंक होगा और ये यस बैंक होगा? स्मॉल इन्वेस्टर के लिए सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है। बट सर मैं वही उत्तर दूंगा जो मैंने सर के प्रश्न के लिए दिया था कि सर वो आपका काम थोड़ी है। अगर कल मैं बीमार हो जाऊं, अब 45-50 साल की उम्र में हर आदमी अपने आप एक सक्षम डॉक्टर होता है, क्योंकि उसने किसी दोस्तों से, किसी रिश्तेदारों से सब समझा होता है। पेट का दर्द हो तो ये ले लो, सर का दर्द हो तो ये ले लो, अगर पीठ का दर्द हो तो ये एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा। 50 साल की उम्र तक आते आते सब तजुर्बेकार डॉक्टर बन चुके होते हैं। तो सर हम डॉक्टर के पास जाना थोड़ी छोड़ देते हैं। वही स्मॉल निवेशक का है। हर निवेशक अपने आप को समझता है कि मैंने तो समझ लिया, मैं निवेश करूंगा। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कैन ही रेप्लिकेट दी प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ ट्रेन्ड इन्वेस्टर जो सुबह से शाम यही काम कर रहा है? जैसे कि मैं किसी डॉक्टर को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसका काम है सुबह शाम का। सर एक्सिस बैंक का फंड मैनेजर ने ये सब भी आती है। अब सर देखो, मैंने आपको बोला था सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। ये तो जनरल बात नहीं, बिल्कुल आप जनरल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं दुनिया में ऐसा कब हुआ है कि
बैड एप्पल्स नहीं रहे हैं, नेगेटिव चीजें नहीं हुई हैं, गंदे आदमी नहीं निकल के आए हैं। अब 2 गंदे आदमी निकल गए, उस चक्कर में बोलेंगे यार अभी निकलना चालू हुआ। नहीं, ये तो हर 10 साल में निकलते रहेंगे। ये पहली बार और आखिरी बार नहीं हुआ है, आगे भी होगा, हर बिजनेस में होगा, म्यूचुअल फंड में भी होगा, बैंकिंग में भी। सर ने यस बैंक का नाम लिया, ये हर बिजनेस में होगा। इसमें अद्भुत क्या है? कुदरत का नियम है ये। जितने अच्छे आदमी हैं उतने बुरे आदमी भी हैं। अगर आप सोचो बुरा सोच के कि यार बुरा है तो मैं नहीं करूंगा, अब ये तो फिर कोई बात नहीं होगी। तो मजबूत कर देते हैं। नहीं, बट सर आपको अपने आप फंड हाउस स्टडी करना है, उसकी स्टेबिलिटी स्टडी करनी है। मैं इन सब चीजों को बिल्कुल सिरे से नकार नहीं रहा हूं, बट देखो अच्छा बुरा हर जगह रहेगा सर, हर बिजनेस में रहेगा। इसमें भी 80-20 रहेगा। मैं शेख नरेंद्र पटेल। ये मार्केट आउटलुक के बारे में त्यागी साहब ने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है कि जो डिमांड है तो इसकी कीमत बढ़ती है, अगर सप्लाई है तो उसकी कीमत घटती है। तो डिमांड और सप्लाई का जो प्रिंसिपल का जो कर्व है वो कैसे हमें समझना है? अगर समझ में अगर आ जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि कब डिमांड होती है और कब सप्लाई होती है। और ये जो मार्केट का आउटलुक के बारे में जो बहुत कंपनियां हैं, तो एनएससी में लिस्टिंग कितना है, तो 50 जो अपना स्क्रिप्ट है उसकी एक अपना एनएससी बना है, और बीएससी का 30 स्टॉक है उसका सेंसेक्स बना है। तो ये समझने के लिए डिमांड और सप्लाई ये जो कर्व है, जैसे भाव बढ़ता है और घटता है, मार्केट अप एंड डाउन होता है, तो इसमें कर्व समझने के लिए मैंने गूगल में सर्च किया, अभ्यास भी स्टडी किया, लेकिन कर्व समझ में पूरी तकलीफ रहती है। तो आपके पास ऐसा कोई है कि कैसे मैं थोड़ा डीप में जाना है? बट सर मैंने शुरुआत ही इस चीज से करी थी कि आपको डिमांड सप्लाई कर्व समझना ही नहीं है। वो तो ट्रेडर समझने की कोशिश करता है कि कहां से डिमांड आएगी, कहां से खरीद आएगी और कहां से बिकवाली होगी। नहीं सर, ये तो आपको समझना ही नहीं है। नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ, इस एज के ऊपर 72 एज है मेरी, और इस एज पर मैं निफ्टी पर अभी स्टडी मेरा चालू है पिछले 5 साल से। जो मैं लिखता हूँ वो होता है, होके रहता है निफ्टी के ऊपर, लेकिन मेरा कोई क्वेश्चन स्टिल है। सर मेरा जवाब ये है कि मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। जब आपको पड़ जाए तो हमें भी बता देंगे। सर हम एक लास्ट क्वेश्चन ले पाएंगे क्योंकि आप दूसरी मीटिंग के लिए जाना है क्या? नमस्ते सर, आपकी एएमसी और आप पैसिव फंड और एक्टिव फंड दोनों चला रहे हैं, तो हमको 2 में से किसी में कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आपके हिसाब से हमको एक्टिव म्यूचुअल फंड में यूटीआई एएमसी के साथ रहना चाहिए या पैसिव इंडेक्सेशन के साथ? प्लीज। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। मैं ये समझता हूं कि अगर आपको जो मार्केट की रिटर्न है, अगर आपके लिए वो रिटर्न सेटिस्फैक्टरी है तो आप पैसिव में जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि देखो मेरे को जो मार्केट रिटर्न दे रहा है उससे 1-2%, 3% ज्यादा रिटर्न कमानी है, तो आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, आपको एक्टिव में आना पड़ेगा। तो मार्केट रिटर्न से, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रिटर्न, अगर आप एवरेज रिटर्न से खुश हैं, पैसिव में बने रहिए, कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरे को मार्केट से जो एवरेज रिटर्न निवेशक कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमानी है, एक ही तरीका है एक्टिव। राइट सर? नहीं, यू हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी। फ्लेक्सी क्या दिए बारे में उसको यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि सर मैं पीएसयू में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर, तो सर हमारे में कोई पेंशन स्कीम होता नहीं है, मतलब नई रिक्रूटमेंट में सर जी। तो मैंने ऑलरेडी कोटक महिंद्रा का और इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी करा रखी है सर, और अभी मैंने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही एक एनपीएस का अकाउंट ओपन किया हुआ है ऑनलाइन सर। तो मुझे थोड़ा गाइड करिए सर, क्योंकि हमको रिटायरमेंट टाइम पे पेंशन तो मिलने वाली नहीं है सर। तो अभी एक्चुअली चंदन आपसे टच में रहेंगे, ही विल गाइड यू ऑन दिस सब्जेक्ट। और सर तो एनपीएस में मैं यूटीआई के थ्रू मतलब मैं अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? एक्चुअली चंदन विल बी द बेस्ट, कर सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। आप इनसे टच में रहिए।
ओके सर. यस, लास्ट क्वेश्चन. सर आई जस्ट वांटेड टू नो एंड अंडरस्टैंड, आप अपना फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में थोड़ा बता सकते. देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे समझाए कि अच्छे स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में निवेश करना है, बने रहना है. इट इज बेसिकली फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट. इट इज बेसिकली देयर टू जनरेट हाई रिटर्न्स, हायर देन द मार्केट. बट जैसा कि मैंने बोला, मार्केट में रिटर्न्स सब हाई चाहते हैं, बेटर देन बेंचमार्क चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त पेशेंस की जरूरत है. देखिए, तीर भी जब आप छोड़ते हैं तो तीर को आगे जाने के लिए पहले आपको पीछे खींचना पड़ता है. कुदरत का एक कायदा है, बिफोर यू टेक अ बिग जंप यू हैव टू गो बैक. अगर आपको इन्फो एज जैसी रिटर्न चाहिए तो नीचे के झटके भी झेलने पड़ेंगे. अपने आप कोई चीज हमेशा ऊपर नहीं जाती रहती. वही एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा है कि अच्छे बिजनेस पकड़ो, ऊपर नीचे जाएंगे. लंबी छलांग मारने के लिए नीचे जो जब जब ड्रॉडाउन होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे टू बीट द मार्केट एंड मेक हायर रिटर्न्स. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. 50 great stocks in India, 50 great businesses of India. Hold them patiently, hold them for a long period of time. That is it. Thank you very much, sir. Thank you. મજા આવી ને? હવે ચેમ્બરના ઓનરરી ટ્રેઝરર સાહેબને, ભાવેશભાઈ ગડિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે એ વોટ ઓફ થેન્ક્સ કમ્પ્લીટ કરે. થેન્ક યુ યાકુબ અલી સાહેબ. માર્કેટ આઉટલુકનું આજે જે અદ્ભુત સેશન આપણે માણ્યું એના આજના આપણા સ્પીકર શ્રી મિસ્ટર અજય ત્યાગીજી, કે જેમણે એના કેટલા વર્ષોનો પ્રેક્ટિકલ અને લોજિકલ નોલેજ સાથે આપણને શેર કર્યું કે જે આપણે કદાચ આપણા માટે શક્ય નથી. આટલું સરસ નોલેજ સાહેબ આપણે શેર કર્યું. તમારી અસ્ખલિત વાણીમાં બધાને મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય એ રીતે. અને આજે મને પોતાને પણ એક ઇન્સાઇટ એટલી બધી મળી કે કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું. એમ આજે આપ સૌ પધાર્યા, આપને માટે વર્થ હશે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી હું આપનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ સાથે આજે જે આ સેશન ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું એવા ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયા, કે જેમની અંડરમાં કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની કમિટી છે, એ પરેશભાઈ લાઠિયાનો પણ હું ચેમ્બર વતી ખૂબ આભારી છું. અને બધું જ આયોજન જેમણે કર્યું એવા આ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિટીના ચેરમેન શ્રી યાકુબ અલી સાહેબ, કે જેમણે ખૂબ મહેનતથી આટલા સ્પીકર આપણી સાથે વચ્ચે ઉપસ્થિત કરાવી શકાયા. એ યાકુબ અલી સાહેબનો પણ હૃદયથી આભારી છું. એડવાઇઝર શ્રી કેતનભાઈ દલાલ અને પધારેલી યુટીઆઈની ટીમ શ્રી ભરતજી જોનલ, કે જેઓ જોનલ હેડ છે, શ્રી ડીકે સિંઘ સાહેબ, કે જેઓ રિજનલ હેડ છે. સાહેબ, આપનો પણ સૌનો હું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. આખી યુટીઆઈ ટીમ જે આપણી સાથે છે એ તમામનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમારા ચેમ્બરના ટેકનિકલ સ્ટાફ છે, મીડિયાના પાર્ટનર, મીડિયાના ટેકનિકલ શ્રી રાહુલભાઈ, પવારભાઈ અને જે કંઈ અમારા ચેમ્બરની ટીમ છે તમામનો પણ હૃદયથી આભારી છું. અને આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા, આટલી શાંતિથી આપે આ કાર્યક્રમ માણ્યો તો અમને પણ એક પ્રવૃત્તિ કરવા માટેની એક મોટિવેશન મળે છે. તો આપ સૌનો પણ હૃદયથી હું આભાર વ્યક્ત કરીને વિરમું છું. આ કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી આપણે હળવા નાસ્તાની વ્યવસ્થા રાખી છે, તો આપ સૌ એમનો પણ ન્યાય આપજો અને ફરીવાર આવા કાર્યક્રમની અંદર સૌ જોડાશો એવી ચેમ્બર વતી હું વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ.